Hello, students. After the summer vacation, we are with a new topic that is the cell. And today we will discuss its historical background. This is very much in your syllabus, and we must know how the cell is discovered. पहले तो ये हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज अ सेल. A cell is actually a biological unit of activity and which exhibits a wide range of complexities and properties associated with the living matter. इसका अर्थ होता है कि cell is the basic units of any living organism, and it carries out all the functions for the organism, for the survival of the organism. And except virus को छोड़कर, जैसा कि हम लोग जानते हैं, it is a quasi living organism which is living only when it is inside a host, and some even consider them neither as an organism or a cell, because as we know, a virus consists of only nucleic acid and protein code, and in the free state it is almost inert. So we will discuss only the cell and the organisms which are made of cell. Living virus says living, these group of organisms which not only include viruses but viroids, virions, these are the organisms which are not composed of any cellular structure. So the cytologists or the scientists defined a cell as the basic structural and functional unit of all living organisms. This is the simplest definition of a cell, and it is stimulated by a differentially permeable membrane and capable of self reproduction in a medium free of other living system. ये चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है which is considered as a permeable but differentially permeable, means it allows only some compounds to enter into the cell, and the branch under which we study a cell is known as cytology. So this is the simplest definition of a cell, and in later classes we will study what are its organization and what are the things which make a cell. Basically, there are two types of organisms that have been recognized on the basis of structural organization, and these are prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes, जैसा कि हम लोग जानते हैं, it include only bacteria and blue green algae, जिसे हम लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं. And eukaryotes consist all other plants and animals which are either made up of one cell or many cells, means either unicellular or multicellular, other than bacteria and blue green algae, जिसे हम लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं. All other organisms are known as eukaryotics. The prokaryotes actually have a relatively very simple internal structure, while in eukaryotes the organization of cells include a number of membrane bound organelles,
एंड इसके डिटेल स्ट्रक्चर एंड डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स हम बाद के क्लासों में पढ़ेंगे और समझेंगे. नाउ द हिस्ट्री, हाउ द सेल इज इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड. तो सबसे पहले तो ये हम लोग जानेंगे कि बेसिक थिंग ये थी कि माइक्रोस्कोप जब तक डिस्कवर नहीं हुआ था, वी कैन नॉट स्टडी द minute structure like a cell. And it was Zacharias Janssen in 1590. He actually invented a microscope. It was a very simple microscope and he invented, and it was actually a lens because he was a spectacle maker. And along with his father, Hans Martens, he was able to see in large views of many things. And this was the initial stage of the discovery of microscope. Now the discovery of cell. When the microscope was discovered, I may call it a lens was discovered to see the minute objects. Then thereafter, Robert Hooke, very important name, and he is actually credited for the discovery of cell. He was an Englishman, a mathematician, physicist, and architect, and with the help of his simple microscope, he examined many natural objects. Although this microscope was a little bit evolved microscope, which was earlier discovered by Janssen, and he saw many objects, and among these were the thin section of cork. कॉर्क जिसे हम लोग बॉटल कॉर्क के नाम से जानते हैं, उसका थिन सेक्शन काट कर भी उन्होंने देखा, और उस थिन सेक्शन में उन्होंने बहुत सारे कैविटीज देखा, और he reported his findings in a book entitled Micrographia. This is very important book, and we must always remember that Micrographia is a book published by Hooke, Robert Hooke. And he in 1665 described many objects which he studied with his improved microscope. Now, actually what he saw was simply a cavity surrounded by cell wall. So it was actually a compartmental structure, means small boxes he saw and named it as cellula. Cellula का अर्थ होता है सेल, लैटिन में से सेलुला के नाम से उन्होंने बताया, जिसका के अर्थ होता है स्मॉल कंपार्टमेंट और चैम्बर, जिसे कि हम लोग आज सेल के नाम से जानते हैं. It was actually a dead cell surrounded by cell wall, and the cavities which he saw had nothing, means it was an empty cell because it was a dead cell. But this is the beginning of the invention or discovery or the cell which were later on studied by several scientists, and आज के दिनों में हम सेल को एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, which carries out a lot of functions, and every function of the organism is actually carried out by this cell. सेल को जैसा कि हमने बताया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक सेल का बना होता है, एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होता है, वो बहुत सारे सेल्स का बना होता है, एंड सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड बेसिक यूनिट इन ऑल द ऑर्गेनिज्म, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, ह्यूमन बीइंग हो, बिग एनिमल्स हो, बट द बेसिक स्ट्रक्चर इज द सेल, एंड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज. एक यूनिसेलुलर जो कि सिंगल सेल का बना होता है,
वो भी वो सारा काम करता है जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है फॉर द सर्वाइवल। सो एक सेल भी सफिशिएंट होता है लाइफ को लीड करने के लिए इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया होता है एंड मेनी अदर यूकैरियोट्स which are composed of single cells. Now, what Hooke observed was actually a non-living entity or non-living structure, but the living cell was for the first time was studied by another scientist, that is Antony van Leeuwenhoek. He was a Dutch, means हॉलैंड के रहने वाले थे, and he was a dry goods merchant, but he was interested in seeing the objects, and with the help of the lenses, and he could improve or enlarge or magnify the objects almost 300 fold. 300 गुना अपने जो मैग्नीफाइंग ग्लास वो यूज़ करते थे उसे इनलार्ज करके किसी ऑब्जेक्ट को वो देख सकते थे। एंड ही ऑब्जर्व मेनी मोटाइल ऑब्जेक्ट्स एंड रिपोर्टेड द सेम टू द रॉयल सोसाइटी। आज उस समय उसे रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के नाम से जाना जाता था, एंड दिस सोसाइटी इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड। एंड सारी फाइंडिंग्स उन्होंने रॉयल सोसाइटी को रिपोर्ट किया और उन्होंने बताया कि वो अपने सिंपल लेंस से मोटाइल ऑब्जेक्ट्स उन्होंने देखा, एंड ही नेम्ड दीज मोटाइल ऑब्जेक्ट्स एज एनिमलक्यूल्स। तो इसे भी हमको याद रखना चाहिए कि दिस एनिमलक्यूल वर्ड जो है उनके द्वारा दिया गया है। एनिमलक्यूल्स का अर्थ होता है स्मॉल एनिमल्स, एंड द वर्ड इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम लैटिन, जिसमें का अर्थ होता है एनिमल का, जैसा हम लोग जानते हैं एनिमल 2 वर्ड से बना होता है, एनिमल एंड प्लस द डिमिनेटिव सफिक्स कलम जिसको कहते हैं, उसे कलम से बना है, और इसको उन्होंने नाम दिया एनिमलक्यूल, मतलब मीन्स स्मॉल एनिमल्स। एंड he actually he named these things or these objects because of his study which he made by rainwater. He observed rainwater and he found many motile objects in the rainwater. So this is the first time when a scientist or workers or a man saw a living cell. And the observation of living cell and the credit for the observation of living cell goes to Antony van Leeuwenhoek in 1674. Now the cell theory. उसके बाद से लोगों ने सेल को स्टडी करना शुरू किया और ये जानने की कोशिश की कि व्हाट अ सेल एक्चुअली, सेल है क्या, एंड सेल का क्या रोल है, क्या फंक्शन है इन द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक्चुअली सेल को फॉर द फर्स्ट टाइम अ फ्रेंच साइंटिस्ट डॉक्टर शेट ने 1824 में बॉयल किया और उसको सेपरेट किया सेल्स में, और उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम ये बताया कि एनिमल्स हो और प्लांट्स हो, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, एंड दिस इज़ एक्चुअली द फाउंडेशन ऑफ सेल थ्योरी। क्योंकि बाद के साइंटिस्ट ने उस पर और अधिक वर्क किया और उन्होंने सेल थ्योरी को एक सेल थ्योरी के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं उसको उन्होंने दिया। एंड अ जर्मन बॉटनिस्ट श्राइडन ने 1838 में ये सजेस्ट किया कि एवरी स्ट्रक्चरल पार्ट प्लांट का जो है एक्चुअली मेड अप ऑफ सेल्स और द रिजल्ट ऑफ सेल्स में सेल्स या उसके तरह के कंपोनेंट्स का बना होता है। यानी ही वॉज एन बॉटनिस्ट और उन्होंने प्लांट पर स्टडी किया, बट he also suggested that cells were made by crystallization. Crystallization means non-living origin उन्होंने cells का बताया, which was later on refuted, and this part of his suggestion was deleted because आज हम जानते हैं कि सेल इवॉल्व होता है एक सेल से, एंड
ये कभी भी एक नॉन लिविंग इवोल्यूशन या नॉन लिविंग हो ही नहीं सकता है, जो कि उन्होंने क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से बताया कि सेल इवॉल्व फ्रॉम और सेल्स are made from the process of crystallization, and this assumption of Schleiden was refuted and it was deleted from the part of cell theory. और उसी समय एक zoologist जिनका नाम था शॉन 1839 में उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दिया कि जस्ट लाइक एनिमल्स प्लांट्स में भी प्लांट्स आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ सेल्स or the product of cells. And this work of Schwann and Schleiden was considered as the major advancement in the field of biology. क्योंकि for the first time ये लोगों ने जाना कि जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर इन ऑल ऑर्गेनिजम्स. एंड फ्रॉम देयर फाइंडिंग्स और उन्होंने ये बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल एंड द सेल इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. एंड दिस इज एक्चुअली द सेल थ्योरी, जिसे हम सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं. वो है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, आइदर वन और मोर सेल्स, एंड दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. और वो क्रिस्टलाइजेशन का जो उन्हें कंजम्पशन था उसे इसको हटा दिया गया यहाँ से, बिकॉज रोडोल्फ वर्चो, वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ रोडोल्फ वर्चो इन 1858 में उनका आया, और उन्होंने क्लियरली बताया कि न्यू सेल ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. जो पहले से सेल्स है उसी से नया सेल्स बनता है. और क्रिस्टलाइजेशन थ्योरी को उन्होंने पूरी तरह डिस्कार्ड किया एंड उन्होंने कहा कि ये crystallization theory is not correct, and he gave the concept of omnis cellula, only omnis cellula is cellula. ये इसका अर्थ होता है कि every cell is from a cell. every cell from a cell मीन करता है एक सेल, जो भी सेल बनता है वो सेल से ही ओरिजिनेट होता है, एंड नॉन लिविंग ऑरिजिन ऑफ सेल का हो ही नहीं सकता है. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ रुडोल्फ वर्चो. लेकिन फिर भी ऑल्दो ही गेव अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, एंड दिस इज इंक्लूडेड इन द सेल थ्योरी एज अ पार्ट ऑफ सेल थ्योरी. सो सेल थ्योरी आफ्टर द वर्चूज experiment is now designed, and it included 3 points. Now first one is all organisms are composed of one or more cell. The cell is the basic unit of structure and organization in organism, and all cells arise from the pre-existing cells. This is very important contribution of Watchko, and he said that every cell arises from a pre-existing cell of the similar kinds. एक ही उसी तरह के सेल से उसका ऑरिजिन होता है. Thus the continuity of life from one generation to another is through living cells. इस तरह से continuity of life चलता रहता है, एक सेल से आगे कई सेल्स बनता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है. और लिविंग ऑर्गेनिज्म जब भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल का हो या मल्टी सेलर हो, it originates and it comes from the cells. So this is the living origin of cells, which was given by Otto in 1858. रोडोल्फ वर्को. इसको वर्को के नाम को याद रखना है, ऑलवेज याद रखिएगा कि लिविंग ऑरिजिन ऑफ सेल्स इन्हीं का दिया हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम. जैसा कि मैंने बताया कि रुडोल्फ वर्को का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, लेकिन फिर भी क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ सेल was given to Schleiden and Schwann, and it is because of their basic work and which attracted the attention of biologists of their time. So सेल थ्योरी को हम इन्हीं दोनों साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं. Now the modern cell theory
was given after a lot of thinking and a lot of work, and includes several things including the above 3 points. Now you can see that first is all organisms are made up of one or more cells, as we have discussed. All living cells arise from pre-existing cells by division. The cell is the fundamental unit of a structure and function in all living organisms. This is also discussed in the above cell theory. Now some additions are made. The chemical composition of and metabolism of cells are basically alike, and energy flow occurs within the cell. Means सेल्स का केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, एंड एनर्जी का फ्लो विद इन द सेल्स होता रहता है. एंड द सेकंड पॉइंट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज अ होल इज द आउटकम ऑफ द एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शंस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सेल्स. जो भी एक्टिविटीज़ होती है सेल के अंदर, उसी को हम लोग दैट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं. एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होता है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन विच अकर विद इन द सेल और सेल कंस्टिट्यूएंट्स. एंड हेरिडिटी इंफॉर्मेशन विच वी नो DNA इज पास्ड फ्रॉम सेल टू सेल. सो सेल हेरिडिटी इंफॉर्मेशन भी एक सेल से दूसरे सेल को पास ऑन होता है. दिस इज द मॉडर्न सेल थ्योरी, and certain points were added after a lot of work and a lot of thinking. Now finally the structures that make cell. हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल्स में नेक्स्ट क्लासेज में इसको समझेंगे, बट एक ब्रीफ यहाँ पर दिया गया है. बहुत ब्रीफली हम लोग यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे. जैसे माइक्रोस्कोप एज माइक्रोस्कोप कंटिन्यू टू इम्प्रूव. माइक्रोस्कोप शुरू में लेंस के शेप में था, फिर उसका इवोल्यूशन हुआ और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नाम से हम लोग जानते हैं. तो जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी या इम्प्रूवमेंट होता गया, वैसे वैसे लोगों की जानकारी भी सेल ऑर्गेन्स और सेल्स के बारे में बढ़ती गई. एंड बाय 1900 मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेन्स के बारे में लोगों ने जान लिया था, बट दे आर फाइन स्ट्रक्चर. उसके फाइन स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही लोग जान पाए. एंड इट वाज डिस्कवर्ड इन 1931 बाय रोस्का एंड नॉल, एंड दे गेव अ वेरी important thing to the biological world. एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही हम लोग सेल के एक्चुअल स्ट्रक्चर, फाइन स्ट्रक्चर के बारे में जान पाए. एंड सेल के फाइन स्ट्रक्चर को हम लोग डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे. बट एज वी नो, a cell study can be divided into 3 major parts, that is the cell wall, vacuoles, protoplasm. सेल वॉल जैसा कि हम जानते हैं केवल प्लांट सेल्स में होता है, एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ आउटर बाउंड्री उसमें वो होती है जो कि कवर करती है पूरी सेल्स को. एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल ओनली. सेल जो मैच्योर्ड सेल होता है उसका एक मेजर पार्ट को वैक्यूल्स कवर अप करता है. सेंट्रल मोस्ट ऑफ द सेंट्रल पार्ट्स को मैच्योर्ड सेल में वो ऑक्यूपाई करता है वैक्यूल्स, एंड इट इज़ फिल्ड अप विथ सेल सेप एंड सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड, जिसे हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं. एंड द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज द प्रोटोप्लाज्म. एक्चुअली प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. साइटोप्लाज्म के अंदर और जितने ऑर्गेनेल्स होते हैं, even and the nucleus, together we call them protoplasm. So अगर न्यूक्लियस को अलग कर दे तो फिर साइटोप्लाज्म बच जाता है, एंड साइटोप्लाज्म में ऑल द ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल्स आर फाउंड. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, क्लोरोप्लास्ट हुआ, गोल्गी apparatus हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दीज आर द ऑर्गेनेल्स एंड स्ट्रक्चर विच आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म. इसके बहुत ही डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में समझने की कोशिश करेंगे. सो आज के लिए इतना ही, एंड आई स्टॉप दिस टॉक हियर. सो थैंक यू वेरी मच.